ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک شام کا بادشاہ محسن اپنی ملکہ کے ساتھ بالکنی میں بیٹھا موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی بالکنی کے نیچے ایک فقیر آ کھڑا ہوا اور بادشاہ کو مخاطب کر کے بولا، بادشاہ سلامت، سردی بہت پڑ رہی ہے، کیا آپ مجھے کوئی گرم کپڑا عنایت کر دیں گے؟ بادشاہ اپنے خیالوں میں ہی کھویا ہوا تھا، اس لیے وہ فقیر کی صدا کو نہ سن سکا۔ اس پر فقیر نے دوبارہ آواز لگائی، بادشاہ سلامت، میرے پاس گرم لباس نہیں ہے، کیا آپ مجھے کوئی گرم لباس عنایت کر دیں گے؟ اب کی بار بھی محسن بادشاہ نے فقیر کی التجا نہ سنی، وہ اپنے خیالوں میں ہی ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے پاس ہی اس کی ملکہ نیلوفر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے فقیر کی درخواست سن کر بادشاہ سے کہا، علی جان، نیچے بالکنی کے سامنے ایک فقیر کھڑا ہے اور وہ آپ سے گرم لباس مانگ رہا ہے۔ محسن بادشاہ چونکا اور اس نے بوڑھے فقیر کی طرف دیکھ کر تالی بجائی۔ تالی کی آواز سن کر بادشاہ کے روبرو ایک غلام آ کے کھڑا ہو گیا، جس سے محسن بادشاہ نے کہا، جاؤ اس فقیر کو کوئی گرم لباس دے آؤ۔ ملازم نے جا کر فقیر کو ایک نیلے رنگ کا اور ایک پیلے رنگ کا کوٹ دے دیا۔ فقیر ان کوٹوں کو لے کر بادشاہ کو دعائیں دینے لگا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اللہ نے محسن بادشاہ کو ایک بیٹی عطا کی۔ محسن بادشاہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے سارے ملک میں جشن برپا کیا، جس میں غریبوں میں خوب انعامات تقسیم کیے گئے۔ شہزادی کا نام محسن بادشاہ نے گل بہار رکھا۔ گل بہار شہزادی ایک برس کی ہوئی تو سارے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے چہرے کا آدھا حصہ نیلا ہو گیا اور آدھا حصہ پیلا۔ محسن بادشاہ کو یہ دیکھ کر بہت صدمہ ہوا اور اس نے ملک بھر کے حکیم بلا کر شہزادی کا علاج کروایا، لیکن ماہر سے ماہر حکیم بھی شہزادی کے چہرے کا یہ نقص دور نہ کر سکا۔ تب محسن بادشاہ نے ارد گرد کے ملکوں میں بھی اعلان کرایا کہ جو شخص بھی میری بیٹی کا یہ روگ دور کرے گا، میں اسے موتیوں سے بری 10 تھیلیاں انعام دوں گا۔ یہ اعلان سن کر دوسرے ملکوں سے بھی مشہور نامی گرامی حکیم شہزادی کا علاج کرنے آئے، لیکن کوئی بھی اس کی بیماری کو دور نہ کر سکا۔ بادشاہ اب اپنی بیٹی کے بدصورت ہونے سے بہت اداس رہتا تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے اسے خیال آیا کہ ایک بار ایک فقیر یہاں آیا تھا، اس نے مجھ سے گرم لباس مانگا تھا۔ جواب میں میرے غلام نے اسے 2 کوٹ دیے تھے، ان میں سے ایک کا رنگ نیلا اور دوسرے کا پیلا تھا۔ کہیں میری بیٹی کے چہرے کا نیلا اور پیلا ہونے کی وجہ وہ فقیر تو نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ جادوگر ہو اور اس نے یہ شرارت کی ہو۔ یہ خیال محسن بادشاہ کے دماغ میں روز بروز پختہ ہوتا گیا۔ آخر کار اسے یقین ہو گیا کہ اس نے اس فقیر کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے سپاہی ملک بھر میں دوڑا دیے۔ ایک ہفتے بعد اس کے سپاہی اس بوڑھے فقیر کو پکڑ کر اس کے پاس لے آئے۔ بادشاہ محسن نے بوڑھے فقیر سے پوچھا۔ بوڑھے فقیر نے بڑے آرام سے جواب دیا، میرا نام گلو ہے۔ بادشاہ سلامت۔ محسن بادشاہ نے گلو سے دوسرا سوال کیا، کیا تم وہی بھکاری ہو جس سے ہمارے نوکر نے 2 کوٹ دیے تھے؟ سچ بتانا، کیا تم ہی ہو وہی جس نے ہماری بیٹی کا چہرہ بگاڑا ہے اور وہ آدھا نیلا اور آدھا پیلا ہے؟ گلو بولا، جی بادشاہ سلامت، آپ کی بیٹی کا چہرہ میری وجہ سے ہی نیلا پیلا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی۔ آپ نے جو 2 کوٹ مجھے عنایت کیے تھے، ان میں سے ایک کوٹ کی جیب میں نہایت زہریلا سانپ تھا اور دوسرے کی جیب میں کالا بچھو۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ ان کوٹوں کو پہننے سے پہلے میں نے انہیں گرم پانی میں ڈال دیا تھا تاکہ وہ کوٹ اچھی طرح سے صاف ہو جائیں۔ اب آپ خود ہی بتائیں، میں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا مانگی تھی کہ وہ آپ کو بہت سی خوشیوں سے نوازے، لیکن جب آپ کے ظلم کا پتہ چلا تو بدعا نہ مانگتا تو کیا کرتا؟ محسن بادشاہ اس فقیر کی شکایت سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے اسی وقت اس غلام کو طلب کیا جس نے گلو کو کوٹ دیے تھے اور اسے بہت ڈانٹا کہ کوٹ دینے سے پہلے انہیں جاڑا پونچھا کیوں نہیں تھا؟ گلو فقیر نے محسن بادشاہ کو جواب دیا، بادشاہ سلامت، شہزادی گل بہار کا چہرہ اب میں ٹھیک نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا چہرہ تبھی ٹھیک ہوگا
जब काले पहाड़ के ऊपर मौजूद चश्मे के पानी के साथ इसका चेहरा धोया जाएगा और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अकेले ही शहजादी गुलबहार को लेकर काले पहाड़ पर जाएं। रास्ते में आपको बेशुमार तकालीफ और सख्तियां बर्दाश्त करना पड़ेंगी, मगर आपका काम है कि हिम्मत ना हारें और आगे बढ़ते चले जाएं। मोहसिन बादशाह ने गुलू फकीर के मुंह से शहजादी गुलबहार का इलाज सुना तो उसी वक्त काले पहाड़ पर जाने की तैयारी करने लगा। जब तैयारी मुकम्मल हो गई तो अगले दिन वो काले पहाड़ की सिमत रवाना हो गया। शहजादी गुलबहार को पिलाने के लिए इसने बहुत सा दूध भी साथ ले लिया था। 2 दिन और 2 रातें लगातार सफर करने के बाद वो जूं ही काले पहाड़ की हदूद में दाखिल हुआ, इस पर गिद्धों ने हमला कर दिया। सफेद और काले रंग के ढेर सारे गिद्ध बार बार पर झपटने लगे। मोहसिन बादशाह इनके हमलों से बचने की खातिर तलवार घुमाता तो वो गिद्ध ऊपर की तरफ उड़ जाते। इन खूनखार गिद्धों ने मोहसिन बादशाह को लहूलुहान करने की बहुत कोशिश की। जहां बादशाह मोहसिन इन गिद्धों से खुद को बचा रहा था, वहां शहजादी गुलबहार को भी बचा रहा था। शहजादी गुलबहार घोड़े पर इसके आगे एक लोहे के बने छोटे से पंगूड़े में लेटी हुई थी और घोड़े की उछल कूद से घबराकर रोना शुरू हो चुकी थी। मोहसिन बादशाह की खुदा खुदा करके इन गिद्धों से जान छूटी तो एक और मुसीबत इस पर नाजिल हो गई। वो छोटे छोटे बंदर थे जो इधर उधर के दरख्तों से मोहसिन बादशाह पर छलांगे मार रहे थे और इसके घोड़े को जख्मी करने की कोशिश कर रहे थे। मोहसिन बादशाह को इन बंदरों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेटी की मोहब्बत ने इसमें बेहद ताकत और जोश पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से वो लगातार बंदरों का तलवार के जरिए मुकाबला करता रहा। आखिर बंदरों का इलाका भी खत्म हो गया, जिस पर मोहसिन बादशाह ने सुख का सांस लिया। इसने नीचे उतरकर जख्मी घोड़े के जख्म साफ किए और इन पर मरहम लगाकर दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गया। अभी इसे चलते थोड़ी देर ही हुई थी कि अब इसका सामना एक बेड़ियों के गिरोह से हो गया। वो बेड़िए यकदम उसके घोड़े पर हमला करने लगे। घोड़ा बदहवास हो गया। दूसरी तरफ शहजादी गुलबहार ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। मोहसिन बादशाह इस सूरत हाल से बड़ा परेशान हुआ। इससे नेजा चलाना मुश्किल हो गया। वो घोड़े और बेटी को संभालता, नेजा मारकर बेड़ियों को दूर भगाता। घोड़ा डरकर छलांगे मार रहा था, इसलिए मोहसिन बादशाह का इस पर बैठा रहना मुश्किल हो गया था। फिर भी वो किसी न किसी तरह बेड़ियों के हमलों का मुकाबला करता रहा। तलवार की बजाय इसने लंबा नेजा पकड़ रखा था और जो ही बेड़िए दांत निकालकर घोड़े के पास आते थे, वो इन्हें नेजे की नोक चुभोने लगता था, जिससे बेड़िए वापस भाग जाते थे। शहजादी गुलबहार का जूला चूंकि घोड़े की पीठ के साथ मजबूती से बंधा हुआ था, नहीं तो जिस तरह घोड़ा जोर जोर से उछल रहा था वो तो जरूर नीचे गिर जाती। फिर मोहसिन बादशाह को भी मजबूरन नीचे उतरना पड़ता और वो बेड़िए इसकी तिक्का बोटी कर देते। मोहसिन बादशाह ने बड़ी बहादुरी और दलेरी से बेड़ियों का मुकाबला किया और इन्हें आखिरकार भगा कर ही दम लिया। इसके बाद मोहसिन बादशाह नए सिरे से घोड़े के जख्मों पर मरहम करके दोबारा से इस पर बैठ गया। लेकिन अभी इनको चलते हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि रीछों का इलाका शुरू हो गया। पहाड़ी रीछ बहुत मोटे और हाथी जितने बड़े थे। वो सामने आए तो मोहसिन बादशाह के घोड़े ने जोर जोर से कांपना शुरू कर दिया। रीछ इनकी तरफ ऐसे आ रहे थे जैसे काली घटाएं बड़ी चली आ रही हों। मोहसिन बादशाह भी इन भयानक रीछों को देखकर डर गया। रीछ पिछले पैरों पर चल रहे थे और बाजू उन्होंने ऐसे खोल रखे थे जैसे घोड़े को काबू करके इसकी पसलियां तोड़ देंगे। मोहसिन बादशाह का घोड़ा दौड़ना भूल गया था और रीछों के खौफ से एक ही जगह रुककर जोर जोर से कांप रहा था। मोहसिन बादशाह ने एड़ियां मारकर इसे आगे बढ़ने के लिए बहुत कहा, मगर घोड़ा टस से मस न हुआ। चुनाचे मोहसिन बादशाह घोड़े से कूद गया और एक हाथ में तलवार और दूसरे में नेजा थामकर रीछों के करीब आने का इंतजार करने लगा। अगले लम्हे रीछों ने बादशाह पर हमला कर दिया। बादशाह ने एक ही वार से 3 रीछ मार डाले। इससे रीछों का गुस्सा आसमान से बातें करने लगा। उन्होंने गजबनाक होकर छाती पीटना और जमीन उदेड़ना शुरू कर दी। फिर उछल उछल कर बादशाह की तरफ बढ़े। वो इस बार बेहद वहशी हो गए थे। उन्होंने ये भी परवाह न की कि बादशाह ने इनके 3 साथी हलाक कर दिए हैं। उनके सर पर एक ही भूत सवार था कि वो किसी न किसी तरीके से बादशाह को चीर फाड़ डालें। बादशाह ने भी बड़ी हिम्मत दिखाई। वो पहले से भी ज्यादा हिम्मत और बहादुरी के साथ
रीछों का मुकाबला करने लगा। उसने अपनी तलवार और नेज़े से 5 रीछ और मार डाले, लेकिन वो अपने घोड़े को ना बचा सका, जिसे 2 रीछों ने जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर इसकी गर्दन दबोचकर एक तरफ को भाग उठे। बादशाह ने जब ये मंजर देखा तो वो खुद चूंकि 10-12 रीछों में फंसा हुआ था, इसलिए घोड़े को घसीट कर ले जाने वाले रीछों का पीछा न कर सका। फिर इसके देखते ही देखते बाकी रीछ भी उन रीछों के पीछे भाग गए। बादशाह ये देखकर हैरान रह गया कि घोड़े के साथ साथ शहजादी गुलबहार भी उन रीछों के हत्थे चढ़ गई है। वो वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि घोड़े के साथ वो रीछ शहजादी गुलबहार को भी ले गए थे। बादशाह के लिए दुनिया अब वीरान हो गई थी और उसने सोचा कि अब मेरे जीने का क्या फायदा। चुनाचे वो एक ऊंची जगह पर चढ़ गया और चाहता था कि नीचे खाई में छलांग लगा दे कि किसी ने अचानक इसके कंधे पर हाथ रख दिया। बादशाह ने झट मुड़कर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि इसके सामने गुलू फकीर खड़ा था। गुलू फकीर ने मोहसिन बादशाह का कांधा थपथपाया और मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, आप अपने इम्तिहान में पास हो गए हैं। ये कहकर गुलू फकीर बादशाह को काले पहाड़ की चोटी पर ले गया। वहाँ बादशाह ने देखा कि एक निहायत शफाफ पानी वाला चश्मा बह रहा था और इसके किनारे पर शहजादी गुलबहार खेल रही थी। अब वो नीली पीली नहीं रही थी, बल्कि एक बहुत खूबसूरत गोरी चिट्टी प्यारी सी लड़की में तब्दील हो चुकी थी। अपनी लाडली बेटी को देखकर बादशाह बेकरार हो गया और दौड़कर इसके पास चला गया और इसे हाथों पर उठाकर खूब प्यार करने लगा। फिर इसने गुलू फकीर से पूछा, ऐ फकीर, ये सब क्या मामला है? मेरी बेटी को तो रीछ ले गए थे, ये यहाँ कैसे पहुंची? जवाब में गुलू फकीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैं ये देखना चाहता था कि आप अपनी बेटी से किस कदर मोहब्बत करते हैं, लिहाजा मैंने इसका चेहरा आधा नीला और आधा पीला कर दिया। मेरा ख्याल था तुम इसका इलाज नहीं करवाओगे, लेकिन तुमने इसके इलाज की खातिर दिन रात एक कर दी। फिर तुमने मुझे ढूंढ निकाला और मुझसे कहा कि मैं इसके चेहरे को ठीक कर दूं, मगर मैं मजीद तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था और मैंने तुम्हें काले पहाड़ की तरफ जाने का मशवरा दिया। तुमने इससे बिल्कुल इनकार ना किया और मेरे भेजे हुए बंदरों, गिद्धों, भेड़ियों और रीछों से लड़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए। इसका मतलब है कि तुम्हें वाकई अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत है। चुनाचे मैंने तुम्हारा इम्तिहान खत्म कर दिया और तुम्हें तुम्हारी प्यारी बेटी से मिलवा दिया। अब मैं खुश हूँ। मैंने शहजादी गुलबहार को भी ठीक कर दिया है और तुम्हारा घोड़ा भी पहाड़ के नीचे बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। चुनाचे फौरन जाओ और सारी जिंदगी खुश रहो। ये कहकर गुलू फकीर बादशाह की नजरों से ओझल हो गया, जिसके बाद बादशाह ने शहजादी गुलबहार को अपने कंधे पर उठाया और काले पहाड़ से नीचे उतरने लगा।